Shrikant, Ali Copy to all, and welcome to E Times, wherein we are back with another interesting E Times Insta live session. Or I've been live after so long that I have been feeling a little nervous. But I think जो आज की हमारी guest है ना, she'll be the one who will make me feel very comfortable because she has been on social media and other video streaming platforms for so long and she's so comfortable in all these platforms and people have started joining in. So glad to see you all. Thank you for coming in and I hope I'm audible to each one of you. Hi to everyone who has just joined in, and let us see, we already have some requests. Okay, they are all Apurva's fans who want to patch in. So like always I have to tell you कि हम आपको live conversation में on video we can't patch you, but I'll try my level best कि आपके सारे comments, all your love, all your queries reach to Apurva for sure. वो मैं बहुत कोशिश करूँगी. Oh, thank you so much Kirti, thank you so much for the compliment. And oh, I'm so sorry, I know some fans are disappointed, disheartened कि live video में patch नहीं हो पाएंगे, but don't worry, आपके comments, आपके questions, आपका प्यार वो उनको मिलता रहेगा. Let me just quickly check if I have a request. If not, and if again like Insta will allow me to send a request, तो मैं वो भी की कोशिश करके देखती हूँ. Let me try. And right now I cannot see her. I just hope that she joins बहुत ही जल्दी. So don't worry. मैं एक बार I'll try from my end as well कि हम उनको approach कर पाएँ. Let's see if we can approach Aurora and invite again. Okay, invite, and she's here. Hello. Right? Hi. Sorry, I'm on the go. Oh, okay, no worries, no worries. But I'm so glad कि हम time पे join कर पाए, because नहीं तो आपके fans ना मेरे को bear नहीं कर पाते. They क्या would बात have है? been like कि where is Apurva? Obviously, वो आपको इतना प्यार करते हैं, including me. You're one of my favorites as well. And let me start this conversation by telling you, one of my colleagues specially messaged me when I asked her to make the creative for the live session. She हाँ. said that you are her favorite as well. Oh, thank you so much. And I think she's chosen the most flattering photo. So I'm happy. Give her all my love. For sure, for sure. So, where are you going to? Oh, I know, some new projects in the pipeline. Yes, that too. And I just got out of a meeting और मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मुंबई में अभी ना मतलब यहाँ पे इतना ट्रैफिक होगा मेरे एरिया में. बट आई थिंक मुंबई ट्रैफिक पे आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हो. तो हमेशा एंड ऑफ बिल्कुल. टाइम रहना चाहिए. So yeah, I thought चलो फिर बस गाड़ी में ही शुरू हो जाते हैं गाड़ी बातचीत. में कर लेंगे. अच्छा है, हमें भी पीछे से कुछ कुछ ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे मुंबई ट्रैफिक के. आई एम फ्रॉम दिल्ली, सो इट्स ओके, आई ओह, कैन लुक एट मुंबई ट्रैफिक. क्या आप कहो तो आपको मुंबई दर्शन करा दूं. अंधेरी टू अरे मायाबती. वाह. वो करते करते ना सबसे पहले मैं अपने सवालों की, क्योंकि मेरे पास लिस्ट है, मेरी राइटिंग अगर ज्यादा अच्छी होती तो मैं आपको दिखा भी देती. बट हाँ, आई हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू. बट द फर्स्ट थिंग I want to know is that we know you as an actress, we know you as a social media celebrity, but who is Apurva Agarwal, Apurva Arora as a girl? Okay, as a normal human being, is she a night owl? Is she a morning person, a coffee person, or a tea person? Pani puri या गोलगप्पे? What is it? What are you all about as a person? Characters बहुत देख लिए, आज हाँ हमें जी. आपको जानना है. अच्छा. सो बेसिकली मैं वैसी मैं बड़ी मुझे लगता है मैं काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ. कोई मतलब देयर आर नो एयर्स कि हाँ भाई हैव टू बी दिस मिस्ट्री गर्ल. समटाइम्स आई फील लाइक यार ये जो मिस्ट्री गर्ल्स होती हैं सो कॉल्ड एकदम ऐसे चुपचाप रहने वाली एंड यू नो दे हैव दिस वाइब अराउंड देमसेल्व्स. ऐसा बन जाऊं क्या? बट आई कांट. मैं तो जहाँ जाती हूँ मैं बातें करने लग जाती. या तो बिल्कुल बातचीत नहीं करूंगी या तो फिर आई विल बी वेरी लाइक क्वाइट एंड आई कीप टू माई सेल्फ. या फिर मैं दोस्त बन जाती हूँ. एक बार अगर मुझे वो वाइब सेट होगी तो मैं दोस्त बन जाती हूँ फिर सबके साथ. तो तो बेसिकली आप दिल्ली आओगे तो हम दोस्त बन जाएंगे. 100%, 100%. ब्यूटिफुल. एंड आई वाज रिसर्चिंग अबाउट यू. मुझे बड़ा मजा आता है कि जब मैं इंटरव्यू करने जाऊँ ना तो मैं उस हाँ बंदे जी. को अच्छे से स्टॉक कर लूं. अरे तो वाह. मुझे पता चला कि आप सिर्फ 12 साल के थे जब आपको आपका फर्स्ट रोल मिला था. हाँ जी. वाओ. या मतलब उस टाइम पे शायद तरीके से ना सिनेमाटोग्राफी भी नहीं बंदा बोल सकता जब उसको ये चीज समझनी पड़ जाए. सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? यू वर नो. वेरी वेरी हाँ. न्यू. ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, एक होता है कि आप जब 10 साल के होते हो या आप
7-8 साल के होते हो, आप थोड़ी बहुत एक्टिंग, आपके पेरेंट्स आपको ऑडिशन दिलाने ले जाते हैं, ये सब वो सब, या फिर जब आप 20 पार कर जाते हो, 18 पार कर जाते हो, तब आप ट्राई करते हो कि हाँ यार मुझे एक्टर बनना है। ये 12-13 साल की उम्र बड़ी ऑकवर्ड उम्र एनीवे होती है। ऊपर से मैं यस, द टीनेज टाइम। कि मैं इसमें कूद पड़ी, और मतलब 15 साल 16 साल की हुई तो मैं मुंबई शिफ्ट भी हो गई दिल्ली से। आई हैड ग्रोन अप इन दिल्ली। तो वो बड़ा ही मतलब वैसा था कि मैं कौन हूँ मैं खुद समझने की कोशिश कर रही थी। साथ के साथ ये हो गया कि मुझे एक्टिंग करनी है और मेरे को ऑडिशंस देने हैं, तो बड़ा ही एक चैलेंजिंग ज़्यादा हो गया था मेरे लिए, बट इट वाज फन, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैं टीआई में जाती या थी और वहाँ पे मुझे स्पॉट किया गया था एक ऑडिशन के लिए। मैं थोड़ी मजाक कर रही यार, मेरा थोड़ी ऑडिशन हुआ और मैं चली गई ऐसे, और वो फिल्म मुझे मिल गई। आई थिंक उसके बाद फिर वो जो असली लाइफ का स्ट्रगल शुरू हुआ ना, वो तब समझ में आया कि वो ऐसी है इंडस्ट्री। और मेरे पास तभी मौका था कि सब तो मैं इतनी छोटी हूँ, मैं छोड़ के जा सकती हूँ, मैं वापस पढ़ाई कर सकती हूँ, आई कैन ऑलवेज कम बैक लेटर, और आई कैन डू समथिंग एल्स। मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हूँ। बट आई थिंक बाय देन आई हैड रियलाइज्ड कि चाहे ये बाय चांस हुआ है, बट दिस इज मेंट फॉर मी। आई वाज मेंट टू बी हियर इन दिस सिटी, वाह। इन दिस इंडस्ट्री। तो मैं कहा ये तो बहुत सही जगह पे फेंका है भगवान जी ने मुझे। सो वो कीड़ा तब तक काट चुका था बेसिकली। हाँ हाँ, मेरे को परफॉर्मिंग आर्ट्स का कीड़ा तो बचपन से ही था। एक्टिंग का मुझे समझ में आ गया था कि हाँ दिस इज फॉर मी। हाँ, performing arts because you learned Kathak as well, right? या For how many years did you do that? आई थिंक ऑल माय लाइफ, मुझे लगता है मुंबई शिफ्ट होने से पहले तक तो मैं सीख ही रही थी, अलग अलग घरानों से, अलग अलग जगह पे। पहले पास में, घर के पास में मॉम ने भेजा कहीं पे कि चलो देखो कैसा लगता है। फिर उसके पहले स्कूल लेवल पे टीचर ने, हमारी राखी मैम होती थी, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया कि बेटा तू जा, तू सीख, यू हैव इट इन यू। फिर उन्होंने शायद बताया था कथक केंद्रा के बारे में, तो कथक केंद्रा में ऑडिशन दिलाने ले गए पेरेंट्स, श्री राम भारती कला केंद्र। तो कहीं 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 आई थिंक मिला जुला के लगभग 8-9 साल मैंने ट्रेनिंग ली है। वाओ, 8-9 साल कथक की ट्रेनिंग। सो आई एम श्योर आज भी जब भी फ्री टाइम मिलता होगा तो डांस तो ऐसे निकल जाता होगा बड़ा मतलब। निकलता है, हाँ हाँ हाँ, सबसे पहले भंगड़ा निकलता है, फिर लगता है नहीं यार थोड़ी सीरियस प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। और मतलब भंगड़ा भी सीरियस फॉर्म ही है मेरे लिए, बट वो क्या है ना कि वो ऑफ अंदर कोर्स, से आता है, तो वो रियाज नहीं लगता। आई नो। बट जब कथक करने जाओ तो रियाज लगता है यार, पैर वैर दुख जाते हैं। बिल्कुल। सो दैट या आई ट्राई टू प्रैक्टिस रेगुलरली। या बिकॉज फॉर कथक पीपल बिलीव कि कथक बहुत डेलिकेट आर्ट फॉर्म है, बट वो हाँ पैरों का थाप, वो आवाज आना हाँ इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? या योर कोर नीड्स टू बी रियली स्ट्रांग यार, आपका कोर, आपके लेग्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, बट आपको एक वो अदा भी चाहिए, वो नजाकत भी चाहिए, वेयर इट लुक्स बिल्कुल। एफर्टलेस। True. And you were just talking about Bhangra, so I have to, on this point, I have to say, you have worked with one of my most loved artists, Diljit Dosanjh, Disco Singh. And, उस टाइम आप कितने साल के थे जब आप दिलजीत दोसांझ के साथ रोमांस कर रहे थे? मतलब ये अभी तक मेरे सपनों में है सिर्फ। मेरे भी सपनों में है यार, मतलब मैं 17 साल की, 17 कुछ ऐसे थी मैं, और मैंने गाड़ी, मुझे याद इसलिए है कि मैंने सेट पे एक गाड़ी ठोक दी थी, तो डायरेक्टर ने कहा था कि गुड्डी तेरे को लाइसेंस कब मिलेगा। मैंने कहा सर 6 महीने बाद। बोला तेरे को नहीं मिलना चाहिए। because that and the first thing that Diljit said to me, because the DOP of the film had worked with me on my first film, तो उन्होंने बता दिया कि बहुत छोटी है, बहुत स्कूल में। तो दिलजीत आके मुझे कहते हैं पूर्वा जी स्कूल क्यों? हाँ यार, आपने मेरा दिल तोड़वा दिया, उनको क्यों बताया मैं स्कूल की। तो बेसिकली और it was beautiful with him first of all। सर बात आपके सवाल, so sorry। आई डिडंट गेट इट, सॉरी, गाड़ी के चक्कर में ना मुझे आवाज नहीं आई। सॉरी, मैं बोल रही थी कि मैं दिलजीत के बारे में बात करते करते आपका सवाल भूल गई। नहीं, मैं पहला सवाल तो यही था कि आप कितने छोटे थे, तो आप 17 साल के थे, हाँ है ना? एंड वो इट वाला वाज मैं लाइक अ पक्का में नॉट ड्रीम कम ट्रू, बीइंग एब्सोल्युटली। अ पंजाबी Before that I वर्किंग विद दिलजीत knew, दोसांझ। yeah, big deal, it was a big deal for me। सो उनके साथ रोमांस करना, एंड स्पेशली जब वो जानते हैं दैट यू आर सच अ निक्की जेई कुड़ी लाइक फॉर हिम, सो Yeah। वो कितना डिफिकल्ट था फॉर हिम और फॉर यू टू लुक एट हिम एंड लाइक कि अरे। एंड माय कैरेक्टर, आपने वो फिल्म देखी ना, वो बहुत उनके पीछे पीछे भागती है, इट्स नॉट आई लव दैट टू फिल्म। वे, है ना। तो अब मुझे अकेले वो रोमांस हैंडल करना है उनके साथ, सो दैट वाज क्वाइट अ चैलेंज, बिकॉज़ एनीवे ही इज अ बिग बिग पर्सनालिटी ऑलरेडी। और ऊपर से थोड़ा मैं मेरे को तो पसंद है ना, वो कोई और को एक्टर होता तो मैं बातचीत कर लूँ आराम से और कंफर्टेबल हो जाऊँ। यहाँ तो दिल का मामला है ना, तो यहाँ कैसे आप उतने ओपन हो सकते हो। सो मैं थोड़ा चुपचाप रहती थी, आई हैड टू रियली हैंडल माय सेल्फ एंड गेट डन।
शूट के 3-4 दिन बाद मुझे प्रोडक्शन के हिसाब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया, they went and told my father, you know, Diljit has said that this girl acts really well and her expressions are so subtle and this and that. तो बस अब मैं चैन से मर सकती हूँ। आई नो दिस वाज माय एग्जैक्ट फीलिंग जब मैं पहली बार दिलजीत से मिली थी कि अब मैं मिलनी, अब मैं चैन से मर सकती हूँ. Yeah. Wow, that is so cool. And you have acted in Kannada movies, Gujarati movies. There was somebody who actually asked कि वो आपको कन्नड़ा movies में कब देख पाएंगे वापस से? I hope very soon. I have done some really big projects in Kannada. But फिर क्या हुआ कि जब मैं एक फिल्म करके यहाँ पे, एक 2-3 फिल्म्स करके यहाँ पे वापस आई मुंबई में, तो डिजिटल बहुत स्टार्ट हो गया मेरा, जैसे वेब शो स्टार्ट हो गए और ये सब बहुत हो गया, तो आई थिंक वो थोड़ा बैक सीट ले गया एंड आई डिडंट मीट मेनी पीपल आफ्टर माय कन्नड़ा फिल्म मुगल नगे रिलीज्ड. तो आई थिंक हाँ, मतलब व्हाई नॉट, आई वुड डेफिनेटली टेल द यूनिवर्स कि गेट मी स्क्रिप्ट्स. No, wonderful, wonderful. And the moment you mentioned about the digital platforms, so हाँ you have done movies, you have done television, you have done music videos as well. और digitally तो वहाँ पे आपका reach मतलब बहुत ही अलग level पे है. But at the same time, in this age of social media, I believe, despite of you doing so many acting gigs, you are still given that tag of a content creator more than the actor, है ना? So does that bother you? How do you respond to that? It doesn't bother me कि भाई अरे कंटेंट क्रिएटर मत बोलो, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता. In fact I really have my favorite content creators कि हाँ मैं लोगों को फॉलो करती हूँ, उनका काम देखती हूँ. But the thing is that I am not a content creator. मतलब I don't at least see myself as that. I see myself as an actor who's, you know, given scripts or probably a writer in the future or probably a creator or a producer. But as a content creator या influencer मैं खुद को नहीं देखती क्योंकि मैं उस तरफ कभी गई नहीं हूँ. तो मेरे को बस लगता है कि वो थोड़ा लोग मिसजज, मतलब मिसअंडरस्टैंड करके वो चीज बोल देते हैं कि आजकल जो भी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स वाला इंसान है वो इन्फ्लुएंसर है. तो आई थिंक वो मिसकंसेप्शन तोड़ना चाहिए, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स है उनका काम अलग है. इट्स दे आर वेरी स्मार्ट, है ना, तो वो भी काम कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा ना हम बोलेंगे अरे ये फिल्म प्रोड्यूसर है. सो सेम वे आई थिंक एक्टर बोला जाए. एंड इन्फ्लुएंसिंग लाइक सोशल मीडिया की बात हुई है तो मैं कैसे भूल जाऊं अबाउट द बड़बोली भावना, राइट? सो वो 1 मिलियन वाला रेस, और वो इतना ऑथेंटिक है ना वो कैरेक्टर आज के टाइम पे स्पेशली वो इतना कनेक्ट करता है बिकॉज इवन दोज पीपल हु आर नॉट social media influencers run after the likes and they want to know what are the insights like and everything. So ये भागदौड़ असल जिंदगी में आपको कितना परेशान करती है? बिकॉज इन वन ऑफ योर इंटरव्यूज यू सेड कि एक टाइम पे आपका अकाउंट प्राइवेट था, आपके घर वालों ने आपको समझाया कि आपको उसको पब्लिक करना चाहिए. सो फ्रॉम देयर टू हेयर व्हाट वाज इट लाइक? It was, I mean, it's still the same, honestly. Recently, I had met a casting director. मैं बचपन से एक्टिंग करी, तो सब लोग ज्यादातर मुझे बच्चे की तरह देखते आ रहे हैं. तो वो भी मुझे मिले, बोलते हैं कैसे चल रहा है तेरा सोशल मीडिया, हाउस और इंस्टाग्राम, ज्यादा तो नहीं वो सब कर रही तू जो लोग करने लग गए आजकल, यू नो, द रेस. नहीं सर, मैं तो इंस्टाग्राम को फन के लिए यूज करती हूँ. ऑनेस्टली मेरी जो सुंदर फोटो होती है मैं डाल देती हूँ. मेरे को ये पता है बस करना है. एंड दैट्स अबाउट इट. उन्होंने देखा, मैंने कहा हाँ सही तो कर रही है, तुम हैविंग फन. तो मैं तो आई जस्ट हैव फन. मेरा आइडिया वो है कि इंस्टाग्राम होना और इंस्टाग्राम पे एक्टिव होने का फायदा ये होता है कि आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करते हो. और हमारे जैसे जो लोग होते हैं, जो एक्टर्स, जो सो कॉल्ड आउटसाइडर्स जो होते हैं, उनके लिए जरूरी है इस तरह की मार्केटिंग कर पाना, सो दैट प्रोड्यूसर्स कैन बैंक ऑन अस. दे नो कि हाँ वी हैव एन ऑडियंस जो हमारी फिल्म या हमारे शोज देखना चाहेगी. सो दैट रियली हेल्प्स. और जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है हम उसके बारे में इजीली बात कर पाते हैं अपनी ऑडियंस से. So that's really great for me. बाकी तो मजे आते हैं यार. मीम्स देखती हूँ मैं सारा दिन. अच्छा, मीम्स देखते हो सारा दिन? That's your favorite scrolling वाला part? Yeah. I have followed a lot of pages जहाँ जो मैं specific meme pages होते हैं वही देखती हूँ. अच्छा, what's your like guilty pleasure watch? कि मतलब लोगों को ऐसे बता नहीं सकते या फिर ऐसे तो बोलते हैं कि बड़ा cringe worthy है, but you still watch it. आज खोल दो पोल. मत बुलवाओ मुझसे, मत बुलवाओ, ये बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे. मेरा क्या मुझे याद नहीं आ रहा ऑनेस्टली. कुछ तो अपना काम देख के मुझे क्रिंज हो जाता है यार, ये क्या किया मैंने. वो तो बट आई थिंक एक्टर के साथ होता होगा. एवरीबॉडी फील्स दैट वे, आई फील, है ना, मतलब. ओके, सो यू आर ट्राइंग टू प्ले सेफ. कोई नहीं, मैं इस सवाल पे बाद में भी आ जाऊंगी दोबारा. वापस आना प्लीज, बिकॉज़ आई एम
ट्राइंग टू थिंक कि मैं ऐसा क्या देखती हूँ बैठ के जो मेरा गिल्टी प्लेजर हो. I'll think of it. You think about it. Okay, Yeah. chalega. So tell me now this thing, कि your parents and your family have been very supportive of your career Yeah. choice and everything, है ना? But in one of your interviews you mentioned कि लोगों को लगता है कि एक्टर की लाइफ बहुत सिंपल होती है, उनको सब कुछ हाँ प्लेट पे सजा के दे देते हैं, है ना? हाँ. So लाइक एक तरफ ये सपोर्ट है और दूसरी तरफ दूसरे आपकी स्ट्रगल चल रही है, हाँ तो जी. आप क्या बताना चाहोगे, कौन सा ऐसा मिथ है इंडस्ट्री का, क्योंकि बहुत सारे हैं, जो आप ऑडियंसेस का भी एंड जो अब आने वाले एक्टर्स हैं हु वांट टू बिकम एक्टर उनके लिए आप ब्रेक करना चाहो? हम्म. मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है हम ना पार्टीज में जाते हैं, वहाँ पे हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, खुद को मार्केट करते हैं और हमें काम मिल जाते हैं. बड़े बड़े लोगों को ऐसे फिल्में मिल जाती हैं. ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, बट इट्स नॉट हाउ इट्स डन. मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो ऑडिशन किया जाता है या मीटिंग की जाती है. और ठीक है, लोग जाते हैं पार्टीज में नेटवर्क करने के लिए, जिसमें मैं बहुत पीछे हूँ बाय द वे. बट मेरे को ये तो पता है कि लोग जाते हैं पार्टीज में एंड पीपल मेक राइट, फ्रेंड्स देयर और नजरों में आना दैट्स है. नेटवर्किंग. Absolutely, but I don't think that gets you parts, because what gets you parts is whether you look the part, आप कैरेक्टर की तरह दिखते हो या आप अच्छी एक्टिंग करते हो. तो आई थिंक वही है कि लोगों को बहुत ऐसा लगता है कि हम सबसे पहले जाएंगे, हम लोग पार्टीज अटेंड करेंगे, हम लोग बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स से मिलेंगे, वो यही सोच के आते हैं. सो आई थिंक ठीक है, वो भी जरूरी है, वो एक हिस्सा है. आई थिंक वो चीज़ें बाद में आती हैं कि you are ओके, somewhere now and then you start meeting people and that helps you in your career. But I think starting में तो audition ही आपका सब कुछ है. So yeah, that's one misconception. ट्रू ट्रू ट्रू, एंड आई कैन से लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि आपको नो स्पिन बहुत सूट कर रही है. मतलब मैं तब से देख रही हूँ, इतने सारे लोगों ने लिखा है, सो आई हैड टू टेल यू दैट द नो स्पिन इज रियली लुकिंग क्यूट ऑन यू. Thanks so much. Acha, which is that one character of yours which you enjoyed playing the most? Like, I'm not saying favorite, but you enjoyed playing, कि बड़ा मजा आया करने में. हाँ, And one character जिसके लिए homework बहुत करना पड़ा. ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स रिसेंट टाइम्स में हुए हैं. जब जो स्पेशली जो कैरेक्टर्स अपनी तरह बात नहीं करते ना, जब अलग तरीके से बात किया करते हैं, वो बहुत मुश्किल होते हैं. बिकॉज क्या होता है, एज एक्टर्स आप थोड़ा इम्प्रोवाइज भी कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, थोड़ा आप अपना सोच तो जब आप फ्लो में बोल जाते हो तो अपनी तरह से बोल जाते हो. सो द रियल चैलेंज इज टू Right. रिमेंबर हाउ द कैरेक्टर टॉक्स एंड वो है. तो अभी रिसेंट टाइम्स में एक फिल्म आ रही है, उसका नाम तो अनाउंस हो गया है, मोमाकू नाम है फिल्म का, पता चलेगा उसका फुल फॉर्म जल्दी. उसमें ना Okay. a very offbeat sort of a character which is unlike me. तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग था और उससे काफ़ी होमवर्क लगा था. एंड द प्रॉब्लम वाज कि मैं फिल्म जस्ट खत्म करके उस फिल्म पे गई थी, तो बहुत कम छोटी विंडो थी. बट लकीली द टीम वाज Right. लाइक अराउंड मी, दे हैड रियली लाइक बिन पिलर्स फॉर मी. तो मेरे लिए हो गया आसानी से. और ऐसे और भी साउथ में एक फिल्म थी मुगल नगे, उसका कैरेक्टर तो अलग ही था. उसके बाद तो मैं बहुत अफेक्ट हो गई थी उसके क्लाइमैक्स सीन से. तो इस तरह की चीज़ें डिफिकल्ट होती हैं. बाकी वही मेरे को लगता है, जो डिफिकल्ट जहाँ जहाँ चैलेंज आ जाता है ना, वहीं मजा आ जाता है. तो या Okay. So जहां जहां पे चैलेंज आ जाता है वहीं पे मजा आता है. So बिल्कुल. अभी आगे आने वाले टाइम में से कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें बहुत मजा और चैलेंज हमें मिलने वाला है अपार्ट फ्रॉम दिस मूवी? एक तो ये जिसके लिए चलो मैं कह देती हूँ, जिसके लिए आप अभी मीटिंग करके आए हो, ठीक है, हम नहीं डिस्कस करें. अभी तो जो चीजें मैं शूट भी कर चुकी हूँ, ऑनेस्टली तो मैं वो भी अनाउंस नहीं कर सकती. मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे जेल भेज सू कर देंगे. चलो जेल नहीं भेजेंगे तो आई नहीं नहीं, कैन. हमें आप यही चाहिए हो तो ठीक है, चलेगा, वी कैन वेट. Probably the next time I talk to you, शायद मैं आपको ज़्यादा बता पाऊंगी इसके बारे में. There's this really cool project. I have a very nice part, small part but very nice part. Like I think मार्च में मैंने शूट किया था. It should be out soon. और Okay. उसको देखने में मजा आएगा. उसके बाद फिर मैं, जब वो आ जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कितना मुश्किल था मेरे लिए. हम उसका वेट करेंगे. ओके, नाउ टेल मी, आई हैव सम लाइक रैपिड फायर काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके, Oh my god. बट दे वेरी लाइक अच्छे अच्छे वाले. अच्छा सो ठीक है. अभी तक आपको जैसे मजा आ रहा था, आपको अभी भी आएगा. आई एम होपिंग आपको मजा आ रहा था, सो अरे वैसे हाँ. ही आएगा. Okay, so the first one is one moment as an actor that you can never forget. There are so many every day. Oh my god. I think एक शो के शूट पे ना, कुछ साल पहले मैं ग्रेजुएशन जब कर रही थी, तो मैं साथ साथ पढ़ाई करती होती थी. तो वो कैरेक्टर जो है शराब पी रहा है,
और टेबल पे दारू Okay. रखी है, व्हाटएवर दे हैड मेड देयर फेक वो एप्पल जूस यूज करके। नीचे मेरे गोद में मेरे नोट्स पड़े हैं। सो जैसे ही डायरेक्टर सर कट बोलते थे, मैं नीचे नोट्स लिख रही होती थी या पढ़ रही होती थी, और जैसे ही एक्शन बोलते थे, मैं शॉट पे शॉट पे शॉट। दैट वाज रियली फनी कि ये कैसी डुअल लाइफ जी रही हूँ मैं साथ के साथ। वाओ, बट दैट इज एट द सेम टाइम इट्स सो कूल, लाइक अब याद करने पे उस टाइम पे थोड़ा हाँ ऐसा हार्ड हो जाता है, बट देन यू हाँ, स्माइल अबाउट इट, राइट? या ना, तो इट्स लाइक अब तो इट्स अ स्टोरी टू टेल। True, true. Okay, a star you look up to. Anybody from the cinema or from the web series world, anyone. Hmm. There are so many great people nowadays. I think recent times में मैं विशाल भारद्वाज साहब की सेंसिबिलिटीज पे मतलब उनकी कायल हूँ, बिकॉज फिल्म्स तो हम उनके शुरू से देखते आ रहे हैं, क्योंकि फादर भी घर में फिल्म्स दिखाते थे और बोलते थे कि इनकी फिल्म देखो, इनकी फिल्म है। विशाल भारद्वाज जी बहुत बड़े डायरेक्टर। Right. पर अब जब वापस बड़े होके देखना शुरू किया और थोड़ी अपनी सेंसिबिलिटी कुछ बनी है, अपनी पर्सनैलिटी कुछ फॉर्म हुई है, समझ में आता है कि यार ये तो मतलब जीनियस इंसान। तो आई थिंक विशाल साहब, तब्बू मैम, आई वुड से कि oh my god, I mean the world knows, Yeah. what she does to each character. She's from another planet altogether, I feel. Oh my god, Okay, मैं भूत का wonderful. वो लास्ट सीन नहीं भूल सकती। Every time I think of her, that comes to my mind and I just can't stop tripping on it. नहीं, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। आई डोंट थिंक कि इससे बेटर दो नाम आप ले सकते थे, सो ये बात पे तो मैं भी आपकी कायल हो गई हूँ। दीज आर द मोस्ट, I think, loved and genuine artists that we have. Even if you बिल्कुल don't say stars, you say artists, right? बिल्कुल बिल्कुल। Okay, next is a social media trend that you are or you were really obsessed with. सोशल मीडिया ट्रेंड, मैंने ना बहुत सारी सोची हैं चीजें। मैं क्या करती हूँ कि आई थिंक ऑफ, एंड वो नहीं था कि वो मूवी का सीन डालते थे एंड में, इट यूज्ड टू राइट, तैयार होके, हाँ। याद है ना? तो मेरे दिमाग में रोज आइडियाज आते थे जब भी मेरे साथ कुछ घटना होती थी, जैसे बड़बोली भावना में मेरा कैरेक्टर है, would see राइट। something, would get an idea, I just not end up making it because वो ये है कि शूट चल रहा है और 10 चीजें हो रही हैं तो अब बना नहीं पाए, अब फिर वो ट्रेंड ही पुराना हो गया। how it happens with trends, तो वो मेरे को But you like that trend a lot. या आई लव्ड इट। वो तो मैं सबका देखती थी, मैं और कुछ देखूं ना देखूं। Okay. If you could travel in time, would you like to go in the past and change something, or you would like to go in the future and see something? I would like to go in the past and meet some people. जैसे I would like Okay. to meet I would love to meet Amrita Preetham, and I would just, I don't know, just breathe the same air as her. And I would Wow. also like to meet Smita Patil ji and just again breathe the same air as her, because these two, and as an author, Amrita Preetham एक one of the first few authors थी जिनको मैंने पढ़ना शुरू किया था और जिनसे मैं काफी प्रभावित हुई थी। समझ में आया था कि हाँ ये होता है फेमिनिज्म, इसका ये इस चीज को लोग आजकल जो फेमिनिज्म Right. बोलते हैं वो है। और स्मिता पाटिल जी की पहली एक फिल्म देखी थी तो पापा ने पॉइंट आउट करा था कि ये कितना सही किया है इन्होंने, समझ में आया इन्होंने क्या किया। Wow. तो वहां से वो एक पहली इंस्पिरेशन जो बनी, तो शायद पास्ट में जाके अगर कभी मिलना हो सके तो व्हाई नॉट। Wow. Wonderful. Okay. So one thing that you can or you will never do no matter what. इन अ फिल्म यू मीन कि इन माय लाइफ मतलब? In general in your life कि मतलब कोई मतलब करोड़ों रुपए भी दे दे तो भी नहीं करूंगी करके। मैं जानबूझ के किसी भी इंसान का, किसी ऑप्रेस्ड ग्रुप ऑफ पीपल या ऐसे जो ऑलरेडी सफर करते हैं फॉर व्हाटएवर रीजन, आई उनका नुकसान नहीं करूंगी जानबूझ के, या उनको हर्ट नहीं करूंगी। तो हाँ, जैसे मैं कोशिश करती Okay. हूँ, आई डोंट नो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू एलैबोरेट इट और नॉट, बट जैसे मैं कोशिश करती हूँ कैरेक्टर में कोई होमोफोबिक जोक्स ना हो जो लगे Right. ग्लोरीफाई कर रहा है। कुछ कुछ कैरेक्टर्स हो सकते हैं उस तरह से ही कर रहा, बट जान ऐसा कुछ ग्लोरीफाई कर नहीं knowing. Okay. Wonderful. Last is that if you get all resources, सब कुछ एकदम set है, so what are the three things जो आपने bucket list से एकदम tick off कर दोगे? अच्छा ओके, तो मेरी छोटी छोटी है, बर्थडे इच्छाएं बहुत छोटी हैं, हो जाती हूँ। उसमें से एक जो थोड़ी बड़ी है वो ये है, जो बिफोर ट्रिलॉजी जो है ना, बिफोर सनराइज, बिफोर सनसेट और बिफोर, तो मैं ना उसमें जो फर्स्ट फिल्म है वो लोग जिस जगह से उतरते ट्रेन पे चढ़ते हैं, सॉरी,
वो मुझे वहाँ जाना है, वो ट्रैवल करना है। Okay, तो so that is one. दैट इज वन। एंड मुझे मेरा ये है, मेरा एक्चुअली ना एक तो बकेट लिस्ट फ्रेंड के साथ है, तो मुझे पता नहीं है कि मुझे वो करना चाहिए बिकॉज वो 2 जनों की लिस्ट है। चलो नेक्स्ट टाइम के लिए वो भी मैं सेव कर लेती हूँ, मुझे इतना लगता मैं है कर सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पे लोग बहुत पूछ रहे हैं फॉर देयर फेवरेट सीरीज विच अगेन इज माई एंड माई हस्बैंड्स फेवरेट सीरीज एज वेल, कॉलेज रोमांस, कि भाई उसका नेक्स्ट सीजन कब आएगा? नेक्स्ट सीजन कब आएगा, आने वाला है, आने वाला है, दैट्स ऑल आई कैन से। लोगों ने बीटीएस देखा है बहुत सारा इंस्टाग्राम पे, एंड इट्स गोना बी बिगर एंड बेटर बहुत जल्दी। मतलब अब मैं बस नाम, मतलब मेरे जुबान तक है डेट, बट मैं बोल नहीं सकती फॉर या। कोई दिक्कत नहीं, वी completely understand your commitment, your professional commitment, the contracts as well. But yes, we enjoyed this conversation. I hope you also had fun. और I think आपका रास्ता अच्छा कट गया अभी, है ना? हाँ, इट वाज ग्रेट। मुझे ट्रैफिक होगा। But this is so nice, and I hope the next time that we when we connect, तो आपके upcoming projects के बारे में हमें और कुछ पता चले, बहुत कुछ पता बिल्कुल चले। तब बिल्कुल। तक के लिए उड़न पटोला भी एकदम मस्त तरीके से उड़े आगे, and you get a lot of love the way you have been getting. Thank you so much. It was nice talking to you, and really sorry about the background noise. I mean, sorry to everybody That's who's. okay. That's perfectly fine. Before you leave, any word for your lovers, your admirers who have been watching us? Guys, I would just say कि जैसे आप प्यार देते आ रहे हो बचपन से, वैसे ही देते रहो। मेरा काम देखते रहो, मुझे जेन्युइन फीडबैक देते रहो। मुझे सिर्फ तारीफ नहीं चाहिए, मुझे फीडबैक भी चाहिए, जिससे मैं सीखूं, आगे बढ़ूं कि मेरी ऑडियंस को क्या पसंद है। एंड कीप एट इट, जस्ट आई होप हम आगे चल के और कमाल करेंगे। That's so sweet. Thank you so much, Apurva. And with this, we have another promise from you. We want this promise कि बहुत ही जल्दी आप हमारे साथ वापस लाइव भी आओगे. डन डन डन। Done? Wonderful. Thank you so much. See you soon. Bye bye. बाय, थैंक्स फॉर हैविंग मी।